My dear friends, my dear bachas, whatever you are, but you are the most important for me. Many times I say you that why you are most important for me. Because you are not just any human being, but you are the future. So I think that the role of us means the people like me becomes very important. I I think it is my duty to train your mind in a way that can be useful for you. And though I don't know many things, sorry, but whatever I know, I try always to give you in different ways. Though I train you to be fluent in your communication and communication in English. So this is the main purpose of my training. And when I train you, when I try to install or uh, program your mind or install a program in your mind, actually this is just like an engineering that I try to do, where I try to make a path in your mind, like you know that I have told you many times that what is there in the different types of applications in our mobiles or computers. There are different types of paths in any app, and when you click a particular thing or particular option, then you move towards that thing with the help of a path that has been written in that app in computer language. Not in machine language, but there are different types of programs that help you make different types of apps. So I think my work is the same here. And though those engineers do their work on computers, but I do my work in your minds. My field is your mind. So I think it becomes my duty to give you what you should be given. सो मैं धीरे धीरे इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा कि आप उस चीज को थोड़ा सा ऐसे करो, और सुनते समय आप लोगों को क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू, यू शुड listen to what I'm saying so carefully. This is not just a listening. This is the way of improving your listening skills, your speaking skills. Like you must focus on pronunciation of any word that I'm speaking. You should have the focus on the intonation of the sentences or the stress that I put on words. You should also focus on the accent.
So then then it would be very nice if you communicate with other persons before you. So speaking speedily is not important. No one wants your speed. Speed is not matter. But the important thing is that what you are listening must be clear to you, or what you are saying must be clear to others. So try to focus on everything, because listening is the matter of sounds. Listening is the matter of sound. If you focus on the sound of, like, देखो क्या होता है कि हमारा जो माइंड है ना, एक्चुअली our mind, I always or many times say that our mind is magnetic. It has magnet. It attracts the things. It attracts the practice. Many of you are very clear about tenses. Now you can identify the tense of any sentence before you, because you know how to identify a tense. So now your mind works automatically, but you have to make practice to reach to that point. So today, we are human beings, and we see that there are other animals also. We are also animals, but we are actually, God has given us some special things. So that is why there is a difference between animals and human beings. But in many ways, in many ways, animals are better than human beings. How? Now listen to me so carefully. Okay, you know what I want to say you that instead of wasting valuable resources on the provision of more medical facilities, it might be better to use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and minds. अब आपको करना क्या है, देखो मैंने आपको जब मैं बोल रहा हूं ना, तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है। क्या शब्द बोला जा रहा है, शब्दों का जो उतार चढ़ाव है, शब्दों में भी स्ट्रेस होता है, उस पर फोकस करना है। किस तरीके से एक इंटोनेशन होता है, इंटोनेशन एक लय होती है ना। इन चीजों पे आपको केवल ये नहीं कान खुले और सुन रहे हैं बस हम, आपको फोकस करना है किन चीजों पे, मैंने कहा इंटोनेशन पे, एक्सेंट पे, आपको फोकस करना है प्रोनाउंसिएशन पे। यानी कि आपको पता चलना चाहिए कि यस कोमा आया यहाँ पर, यस यहाँ पर फुल स्टॉप आया, यस यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया। समझ में आ रही मेरी बात आपको? ट्राई करो, देखो माइंड आपको अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट हो जाएगा माइंड के अंदर, फोकस अगर करेंगे तो। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन for health and teaching this to the children, and we should use our indigenous simple home remedies to solve simple health problems instead of relying simply on modern drugs, which are often very expensive. And remember, most drugs have side effects which can be more dangerous than the disease itself. In nature, animals are not influenced. फोकस करो प्रोनाउंसिएशन पे, बहुत मैं आपसे कहा था ना एक दिन की, ये लाखों रुपए की फीस दे देते हैं लोग। सच बता रहा हूँ मैं आपको। IELTS का जो कोर्स होता है, दूसरी चीजें होती हैं, टॉफल का होता है। मैंने कहा था आपको कि सपोज यू हैव टू गो abroad for your study, further studies, you can't go without improving these things, Vaishnavi. You can't go.
You will have to improve your accent, you will have to improve your intonation, you will have to improve your pronunciation. Otherwise, you won't be able to understand what your professors or teachers are teaching you in the classroom if you go to Australia or Canada और समझ में आ गई बात? तो पहले यहाँ के हिसाब से ठीक करो, फिर वो चीजें अपने आप पकड़ लोगे फिर उनको आप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समय का क्या पता कब कहाँ भेज दे किसी को, फिर क्या करोगे? लाखों रुपए फीस लेते हैं लोग, लाखों रुपए ठग विद्या चलती है बेटा. लाखों रुपए की फीस ले लेते हैं वो IELTS के कोर्स के लिए. मालूम कर लो आप, ये ऑनलाइन में पता कर लेना आप क्या है, कौन से इंस्टीट्यूट से कितनी फीस है, क्या है क्या नहीं. ठग विद्या और होती है और कुछ नहीं होगा उससे. बस एक बार आपको, मैं चाह रहा हूं कि ये सब चीजें आपकी प्रैक्टिस में आनी चाहिए. प्रैक्टिस में आनी चाहिए. जरूरी नहीं कि हम बाहर पढ़ने जाए. अरे खड़े होकर के अगर हम 4 सेंटेंस बोले ना अंग्रेजी में तो लगे सामने वाले को कि यस है अंग्रेजी यार इसकी. आई एम ए टीचर. I teach English. Uh, uh, I live in Jaipur. What is this here? हाँ? ऐसा लगता है जिन्हें गला पकड़ लिया हो भाई. हालांकि में से आवाज नहीं निकल रही. तो लाइक दैट मैं चाहता हूं कि आप इतने इतने प्रैक्टिस में आप आ जाओ कि रात को भी 2 बजे बोलो तो मुझे यस सामने वाला सुन के चकरा जाए. एक सेंटेंस आदमी बोल देना सामने वाला गलती से तो उसकी 12 बजा दो तुम. समझ जाए वो कि भाई कह दे हाथ जोड़ के भैया तुमने सॉरी गलती होगी मेरे से, मैंने अंग्रेजी का सेंटेंस बोल दिया तेरे को. अंग्रेजी बोलना नहीं, उसको इस तरीके से बोलना है कि समझ में नहीं आए साल उसको, सामने वाले को समझ में नहीं आए कि यार बंदा क्या बोल गया है. है है करता रहे वो. उस लेवल पर मैं चाहता हूं आप लोग आए और बात करें. तो दैट कैन बी दैट कैन टेक प्लेस ओनली विद योर हार्ड वर्क, विद योर फोकस. देखिए सीखने के लिए कभी खत्म नहीं होता कुछ भी. मेरा ही खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा कहां से खत्म हो जाएगा? है ओवर 40 ईयर्स तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मतलब सॉरी मैं सीख रहा हूँ इसको. 1982 से मैंने सीखना शुरू किया था. 43 years I spent my 43 years for this language and I will spend more in my further life. मेरे को तो कोई ऐसे पढ़ाने वाला नहीं मिला, सच्ची बता रहा हूँ मैं. सच बता रहा हूँ मैं ऐसे मेरे को पढ़ाने. हाँ मेरे को मेरे गुरुओं ने मुझे पढ़ाया था जब मैं ट्रेनिंग पे जाता था तो उनका है सब कुछ मेरे पास, पर इस तरीके से इतना डीपली तो. पर उन्होंने जो मुझे दिया था ना एक छोटा सा एक, मैंने उसको फिर डेवलप किया अपने हिसाब से बस. दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ माई गुरुज. मतलब मेरे कोई इंग्लिश अंग्रेजी सिखाने वाले मेरे कोई एक पर्सन नहीं रहा है मेरा. मैं आपको बताता रहता हूँ, मैंने किसी एक व्यक्ति ने मेरे को अंग्रेजी नहीं सिखाई है. ध्यान रखना आप मेरे लाइफ के अंदर. मैं आज अगर यहाँ पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हूँ तो उन अपने गुरुओं की वजह से. उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया बस, देन तो फिर मैंने खुद ही प्रिपेयर किया अपने. तो वही मैं चाहता हूँ कि आप समझो किसी बात को. सो यू नो इन नेचर, सुनना ध्यान से, बड़ा क्या जबरदस्त बात कही गई है. Animals are not influenced by media campaigns like we human beings. बॉर्नवीटा का ऐड आ गया, लाओ पापा फला कैंपेन, ये लाओ फटाफट, ये ऐड आ रहा है यार, ये ला रहा हूँ, ये लाओ, इससे वजन कम हो जाएगा, इससे वजन बढ़ जाएगा. और हम वो कैंपेन देखते हैं ना मीडिया, सोशल मीडिया पे या टीवी पे या कहीं पर भी. हाँ ये खा के जाओ पेपर बढ़िया हो जाएगा, पढ़ के मत जाओ फिर तो ये खा के जाओ, पूरा डब्बा खा जाओ, 5 किलो खा जाओ, सुबह शाम दोनों टाइम खाओ एग्जाम के दिनों में. तो उल्टी दस्त लग जाए तो कोई बात नहीं है, पेपर तो बढ़िया हो जाएगा. वो सोशल मीडिया से जो मीडिया जो है ना, मीडिया कैंपेन, सुनिए जरा बात क्या गई है. बट ह्यूमन बींग्स कभी देखा है आपने किसी परचूने की दुकान पे किसी गाय को खिलाओ जी एक बोनवीटा का पैकेट दे दो, कल टीवी पे ऐड आया था बढ़िया वाला. सो इन नेचर एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स एंड दे टर्न and they trust their own instincts. स्पेलिंग लिख दोगे आप, गारंटी दे रहा हूं मैं अगर फोकस है साउंड पे तो. इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट्स. कोई बात नहीं है, लिख दो, गलत लिख दो, कितने गलत लिखोगे यार, हम भी तो देखें जरा. हाँ? अरे 10 लेटर की स्पेलिंग में अगर आपने
एक स्पेलिंग गलत लिख दी तो आपने कितना 10% ही तो गलत लिखा है यार, आपने 90% तो सही लिखा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य पता है क्या है, बच्चे का 90% मार्क्स आ जाएगा ना, 90% नहीं देखेंगे, वो 10% देखेंगे। और मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई एक बात बताओ कि 90% ज्यादा होता है कि 10% ज्यादा होता है? कि जी ज्यादा तो 90% ही होता है, तो वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा उसका 10% कहाँ गए? एक बार भी नहीं पूछा यार, शाबाश बेटा यार 90% आए तेरे यार, वेरी गुड यार, 10% देख लेना, अगली बार ट्राई कर लेना थोड़ा सा, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। अब 10% कैसे नहीं आए तेरे, उसके तो 99 आ गए, तेरे 90 कैसे आके रह गए? ये सबका बराबर थोड़ी होता है? होता है क्या? अरे गाय को आप पेड़ पे चढ़ना सिखा सकते हो? सिखा सकते हो क्या? नहीं, मैं तो मेरे बच्चे को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाऊंगा। अरे भाई जबरदस्ती मत करो, ये गाय है, पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है ये, नहीं। ये तो गाय, हाथी होता तो भी चढ़ा देता मैं तो। अरे मत चढ़ा, जबरदस्ती नहीं चढ़ पाएगा, वो गिर जाएगा, पेट टूट जाएगा, भर के गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे इसके यार। नहीं लेगा कैसे नहीं मैथमेटिक्स, ले, हम देखते हैं कैसे नहीं लेगा तू। अरे भाई कैसे नहीं लेगा का क्या मतलब हो गया? सो यू नो, नेचर हैज गिवन each animal the power to monitor its own body and maintain normal health. ध्यान रखना, हम हर चल डॉक्टर के, चल डॉक्टर के, जरा सा जुकाम हो गया चल डॉक्टर के, जरा सी खांसी हो गई चल डॉक्टर के, कुछ नहीं है तो भी चल डॉक्टर के, चेकअप ही करवा लेते हैं तेरा। अरे यार हद कर दी तुमने तो यार, है? हर बात के लिए डॉक्टर, हर बात के लिए डॉक्टर। जबकि सुनो फिर से कह रहा हूं मैं, नेचर हैज गिवन ईच एनिमल, animal means all creatures here, human beings also are included in it, all animals the power to monitor its own body and maintain normal health. और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस, मैं, आप में से कितने लोग हैं जो सुबह गर्म पानी पीते हैं एक गिलास? ईमानदारी से बता दो वैसे। मैं अब ये जो रोजाना गर्म पानी पीते हैं ना एक आदत से, इनको पूछो आप, थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो छोटी मोटी चीज तो हो ही नहीं सकती। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो ये सबको भगवान ने सबको दिया है अपना ध्यान रखने का, कि भाई रख सकता है वो, एज एन एग्जाम्पल। अरे जानवरों की बात कर रहे हैं अपन, अब इंसानों को तो दिया ही होगा ना, अगर जानवरों को भी भगवान ने अगर ये चीज दी है, पावर दी है, तो इंसानों को नहीं दी होगी क्या? है? पता है ज्यादा खाएगा तो पेट में दर्द होएगा, उल्टी लगेगी, दस्त होंगे, पता है, ठूसे जा रहा है, ठूसे जा रहा है, ला एक और दे, बड़ा टेस्टी है, एक और दे रहे भाई, तू माल पराया हो सकता है, पेट तो तेरा अपना है, नहीं है क्या? नहीं यार एक और ला, बड़ा अच्छा रसगुल्ला है, बड़ा अच्छा गुलाब जामुन है, 8-10 तो खा लिए, मन नहीं भर रहा, 4-5 और खा लेता हूँ। तो खा तो ले, पर वहां भी तो देख, उतनी कितनी जगह है कि नहीं है वहां पे, वो क्या पेट तो फटेगा नहीं, वो तो भगवान ने मजबूत बनाया है। और उसका भाई होएगा ना कहीं से, तो वो उसका करेगा ना, वो कैसे रुक जाएगा यार? लेकिन नहीं, फॉर एग्जाम्पल salt, salt is an essential element required by all animals। बहुत सिंपल सा सेंटेंस था, मैंने बहुत धीरे धीरे बोला है। Wild animals in the forest like rhinoceros, elephants, or deer try to find a place where salt is present in the soil। आपने देखा जानवर मिट्टी को चाटते हुए, देखा आप जानवरों को, देखो मिट्टी को चाटते हुए, हैं? पागल जानवर है, मिट्टी को चाट रहा है, अरे पागल नहीं है वो, उस मिट्टी में से नमक को चाट रहा है वो।
सर बछड़े होते हैं ना गाय के, वो चाटते रहते हैं। फिर बेटा वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो ऐसी जगह जाके ढूंढेंगे जहाँ आप देखो इन एनिमल्स को, इन बर्ड्स को ध्यान से, सच बता रहा हूँ मैं आपको, आप कहोगे यार दिमाग तो है इनमें यार। मैं एक दिन छत पे बैठा हुआ था और मेरे ऊपर छत के ऊपर एक गमला था, उसमें से मैंने सदाबहार के कुछ एक पेड़ थोड़ा सा बड़ा सा झाड़ी टाइप था, उसको निकाल के मैंने डाला था बाहर। मैं बैठा हुआ पड़ा हुआ था वो 2 दिन, एक दिन मैंने देखा यार बड़ा फैला फैला सा दिख रहा था वो, जैसे उसको टुकड़े हो गए हों। मैंने कहा यार मैंने तो ऐसे ही डाला था, सीधा सीधा सा फैल कैसे गया है, आधा इधर पड़ा है, आधा उधर पड़ा है, आधा उधर पड़ा है, एक ही झाड़ी थी। बैठा रहा, मैं धूप में बैठा हुआ, तभी मैंने देखा है कबूतर आया, और वो कबूतर ने उस जो झाड़ी सी पड़ी हुई थी ना, उसमें से वो उसने निकाला, पता नहीं कैसे उसने निकाले और लेके चला जाए दूसरी जगह, निकाले आए वापस निकाले और दूसरी जगह लेके चला जाए। मैंने किया क्या, मैंने उस कबूतर का पीछा किया, खड़ा हुआ मैंने देखा वो लेके और गया वो, और बड़े हिसाब से उसको तोड़ तोड़ करके, उतना बड़ा था एक साथ नहीं लेके जा सकता था, वो तोड़ तोड़ करके उसकी टहनियों को, छोटी छोटी टहनियों को तोड़ तोड़ करके वो उड़ करके, मैंने देखा कहा तो मेरे बगल में एक मकान है सामने, उस मकान में कहीं वो घोंसला बना रहा था और वहां ले जा करके उसको इकट्ठा कर रहा था। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? सर तो वो झुंड में से वो बना लेता ना घोंसला अपना। तो पूरा कैसे ले जाता वो उसको उठा के बावड़े? पूरा नहीं, वहीं पे बना लेता ना। वहां तो जगह होगी जब तो बनाएगा, ऐसे थोड़ी कहीं भी बना लेगा, खुली जगह में थोड़ी बनाते हैं, थोड़ी सी जगह ढकी हुई हो, थोड़ी सी सुरक्षित तो वहां बनाते हैं घोंसले। और मोस्टली जब पक्षी घोंसले बनाते हैं तो मोस्टली ये पक्षी जब ये अंडे देने वाले होते हैं तब ये घोंसले बनाते हैं, कबूतर का तो मैंने देखा। अब देखो, पता है अंडा देने वाला हूं या अंडा देने वाली हूं, और उससे पहले से ही वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं, बोलिए आप व्हाट इज दिस। तो भगवान ने सबको, हर प्राणी को इस तरह के इंस्टिंक्ट्स दिए हुए हैं। इंस्टिंक्ट्स, एक वर्ड आया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको समझा दिया, इंस्टिंक्ट्स दिए हुए हैं। दे रेगुलरली लिक, लिक, दे आ रहा है यहाँ पर एनिमल्स के लिए, दे रेगुलरली लिक। अब आगे समझ में आ जाएगा लिक का क्या मतलब है। लिक द सॉइल to get the exact amount of salt their bodies need. They eat only the required amount of food. ये इंसानों की तरह नहीं है, सब्जी बढ़िया बनी है तो 2 रोटी और खा जाएंगे, मिठाई आ गई थाली में तो 3 कटोरी और खा जाएंगे, अपने घर पे तो फिर भी थोड़ी सी शर्म कर लेंगे, कहीं खाने चले गए तो फिर तो पूछो ही मत, हैं, चेपे जाओ, बाद में देखी जाएगी जो भी होगी। They eat only the required amount of food and never suffer from obesity. वर्ड आ गया यहाँ पर obesity, obesity, पकड़ो साउंड को, स्पेलिंग आ जाएगी यार, obesity, 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 साउंड को पकड़ोगे तो अपने आप आ जाएगा। As we humans also often do, मैंने बता ही दिया आपको। हैं? They monitor their body needs by instinct. They monitor their body needs by instinct and eat no more than is required. समझ में आ गया होगा शायद आपको, कुछ तो अंदाजा लग ही गया होगा किस बारे में है, क्या है क्या नहीं। कुछ मजा आया, थोड़ा सा फोकस किया आपने, थोड़ा सा डेवलप चीजों पे मजा आया कुछ? हाँ। आप 10-15 दिन कर लो, अपने माइंड में आपके ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट हो जाएगा। आप गारंटी दे रहा हूँ मैं, आप जितना फोकस करोगे बोलने में भी ऐसे ही बोलने लग जाओगे आप, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपके माइंड को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। मैं आपको कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके माइंड में एक सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ बस, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने आज तक यही किया है आपके, मैंने कहा ना मेरा फील्ड आपका माइंड है।
मुझे आपके माइंड पे ही वर्क करना है, इसी पे। जैसे एक इंजीनियर होता है, उसका एक लैपटॉप है या उसका जो कंप्यूटर है, पीसी है ना, वो उस पे काम करता है, इसी पे तो करता है सारी प्रोग्रामिंग वो। मैं कहाँ करूंगा? मुझे आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग करनी है। और मजे की बात ये है, ऐप तो एक बार बन गया तो वो चलता रहता है, कॉपी पेस्ट करते रहो, इंस्टॉल करते रहो। ये तो मुझे एक एक इंडिविजुअल दिमाग के अंदर मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, सारे सिस्टम को। तो आई थिंक दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट नाउ आई डोंट थिंक सो। बिकॉज अब मेरे लिए तो, मुझे तो लगता ही नहीं है कि यार ऐसी कोई चीज है। मतलब आज तो मैं उस लेवल पर आ गया हूँ कि विद इन अ मंथ, मैं 1 महीने के अंदर अंदर तो अंग्रेजी बोलने लग जाता है बच्चा। अभी आज देखना आप, मैंने आज रिकॉर्डिंग डाली है, उसमें एक बच्चा है, अभी 1 महीना हुआ है उसका, जिसका फोटो है ना रिकॉर्डिंग, जो लिंक में जो फोटो दिखाई दे रहा है, अभी केवल उसको 1 महीना हुआ है। बयाना से है वो बच्चा, राजस्थान में बयाना है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। अभी 1 महीना हुआ है उसको, अभी पिछले महीने की 28 तारीख को ज्वाइन किया था उसने, अक्टूबर में। तो मैंने आज उसको स्पीकिंग चालू करवा दी, सुनना आप उसकी एक बार स्पीकिंग। तो अब मेरे लिए कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि यार इंग्लिश स्पीकिंग का क्या, क्योंकि वो माइंड में जैसे तुम लोगों के जनरेट, मेरे भी तो जनरेट हो रहा है ना वो सारा का सारा सिस्टम। मेरा भी तो माइंड है ना, मेरे में भी तो वो सारा का सारा सिस्टम जनरेट हो रहा है कि नहीं, और आगे से आगे और चीजें डेवलप होती चली जाती, लाइक दैट। सो एनी मीनिंग, एनी डिफिकल्ट वर्ड, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क मी? सर इंस्टिंक्ट्स मीनिंग। इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता है बेटा, खुद के अपने आंतरिक कुछ ऐसी हमारी अनुभूतियां होती हैं, ऐसे गुण होते हैं। जैसे अंदर से ही हमको पता चल जाता है चीजों का। जैसे खाना, अमन में खाना खा रहे हैं हम, तो खाना खाते हैं तो अपने को पता चल जाता है ना कि पेट भर गया है अपना, या भरने वाला है। यस सर। सर फीलिंग हो गई एक तरह से। हाँ, मतलब ऐसे ही मान लो आप, अंदर के गुण होते हैं, हमारी सहज प्रवृत्तियां होती हैं ये, जो हमें बता देती है। अब लेकिन देखो आप, ओके सर। आजकल का सिस्टम क्या बन गया है पता है? ये जो बच्चे को जब भूख लगेगा तब खिला देंगे उसको। छोटे बच्चों के साथ क्या करते हैं मोस्टली, मैंने देखा है मदर्स, टाइम टेबल बना लेते हैं। सुबह 9 बजे खिलाना है, फिर 11 बजे खिलाना है, फिर 3 बजे खिलाना है, फिर 6, और अलार्म लगा लेती हैं वो। अब उसको, बच्चे को भूख है या नहीं है, बेटा तेरा मैंने डिसाइड कर दिया ना, 3 बजे का टाइम दो, तेरे को खाना ही पड़ेगा, टाइम हो गया। मेरी बात को समझना जरा। अब इससे क्या होता है पता है आपको? उस बच्चे का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, जैसे भूख लगेगी तो वो एक्टिव होगी ना, उसके अंदर की कोई चीज पता चलेगा अभी भूख लग रही है। समझ में मेरी बात आ रही है आपको? वो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी मेरी बात अब मान लो हम कहते हैं कि भाई बच्चों को अपने आप करने दो तुम। सुनना मेरी बात को जरा, इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? हम कहते हैं तुम बच्चे को भी अपने आप करने दो चीजों को, है ना? तो उसके जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है ना बेटा, वो उसको बताते हैं कि तुझे क्या करना है, कैसे करना है ना? अब हम क्या करते हैं, जरा जरा सी बात भी उसको हम कहते हैं अब तू ये कर, अब तू ये कर, अब तू ये कर, अब ऐसा कर, अब हिंदी का काम कर, अब गणित का काम कर, अब ये कर, अब वो कर, अब वो कर, अब ये कर, अब खड़ा हो जा, अब बैठ जा, अब पानी पी ले, नहीं है प्यास फिर भी पी, ये खा, भूख नहीं है फिर भी खा। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, जो उसको उसको बताते हैं चीजों को, वो वो इनएक्टिव होने लग जाते हैं। क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं हो तो वो इनएक्टिव होने लग जाते हैं। इनएक्टिव होने के बाद में उस बच्चे को पता ही नहीं चलता मेरा कब पेट भर गया। खाया जाएगा, खाता जाएगा, पता ही नहीं चलता उसको पेट भर गया मेरा। क्योंकि वो उसको हर चीज के लिए गाइड किया जा रहा है, बस अब मत खा। और खा, नहीं ये एक रोटी, अरे मुंह का तो एक रोटी खा ली उसने, मेरा पेट भर गया, नहीं, दो से क्या होता है, एक और खा। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होता है ना उसका, वो क्या होता है, ये कम मत कर, ये का। अब उससे वो बच्चा, अब हम बार बार अगर किसी को करने के लिए कह रहे हैं ना पढ़ाई, मैं नहीं मानता हूं कि नहीं कहना चाहिए, तो खुद के अंदर से जो उसके अंदर से इंस्टिंक्ट्स पैदा होते हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे। यानी कि वो क्या करेगा, हमेशा कोई कहेगा तभी करेगा, कोई कहेगा तभी करेगा। तो इंस्टिंक्ट का मतलब होता है हमारी सहज प्रवृत्ति, हमारे सहज गुण, जो हमारे अंदर, सबके अंदर होते हैं, सबके अंदर होते हैं। और बोलिए फटाफट से।
सर एक बार इसकी मीनिंग बताना। इसकी इंस्टिंक्ट। सुनो जरा, देखना जरा, चेक करना कितनी सही है कितनी गलत है। फिर से बोल रहा हूं मैं एक बार पहले, इंस्टिंक्ट्स, INS TIN CTS, इंस्टिंक्ट्स। इंस सही सही होगी यहां तक तो। इंस्टिंक्टिंग, सुनो ध्यान से, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट, और क्लियर कर देता हूं, इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट। गलत हो गई तो कोई बात नहीं है, इंस्टिंक्ट गलत हो गई तो कोई, कितनी गलत हुई ये भी देख लो। टोटल 8 लेटर है इसमें, कितने गलत हुए हैं तुम्हारे? वैष्णवी, हाँ? दो गलत हो गए ना यार। ओके, कितना % गलत हुआ है? कितना % गलत हुआ? 8 में से 2 लेटर गलत हो गए, कितना % गलत हुआ 60 है? थप्पड़ मार दूं खाजे गाल के ऊपर। 8 में से 2 गलत हुए, % नहीं निकाल पा रहे हो? सर 20%। यार हद हो गई तुम्हारी, पढ़ाई लिखाई ने तो गजब ही कर दिया है। सर 35% के लगभग होगा, 35% के लगभग जाएगा। अभी लगभग सर आ रहा है। 20%। अरे मूर्खो, 25% नहीं होगा क्या? सर 20% होगा। अरे 25% होगा, 8 में से 2 गलत है। हैं? लगा ले, कैलकुलेट कर ले। तो 8 में से आपके 25% गलत है, 75% तो सही है ना? लेट अस सेलिब्रेट। 25% के लिए नहीं रोना है, 75% के लिए खुशी मनानी है। अगली बार इसको भी निपटा दें। आ जाओ, और कोई बात? एनी अदर थिंग? सर ये ओबेसिटी जो होती है, मोटापा, ओबेसिटी। अब स्पेलिंग आ जाओ, ओबेसिटी, 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 ओबेसिटी। ज्यादा ज्यादा 2 स्पेलिंग गलत करोगे, और कौन सी करोगे बता दूंगा अभी मैं, चेक कर लो। OBESITY। सर वाई लगा दिया, OBEY। मैंने कहा था अबे, ऐसे अबे होता, मैंने फिर भी ऐसे बोला आपको, अबे, अबे, बे बे बे, BE बे, ए ए ए ए, ये आवाज आप देखिए। अबे सी, अबे सिटी, 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 वाई लगेगा, OBESITY। छोटी छोटी की आवाज आएगी जब वाई लगेगा तो। अबे सिटी, 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 अबे सिटी। फोकस करके देख लो, 10 दिन के बाद आपकी कहोगे यार क्या बात है, आप खुद ही करने लग जाओगे। यार अमेरिका जाके आया क्या तू? क्या इंग्लैंड जाके आया क्या? अरे भैया नहीं, हम यही मेहनत करते हैं। लर्निंग ऐसे नहीं होती है, रटवा दिया, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कागला, कागला का भी स्पेलिंग का पता नहीं, दागला का पता नहीं, फिर है जिंदगी बीत गई रटते रटते। बोल्ड, कोल्ड, मोस्ट, अरे मस्ट होता है यार, मोस्ट सुनता हूं मैं ऐसे। डॉज, अरे डॉज नहीं है भाई, ये डज है। सर आपने तो मस्ट को रोस्ट कर दिया। समझो बात को कुछ, वो ऐसे लोग, और आप लोगों के लिए स्कूलों के अंदर ऐसे ट्रेंड लोग होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो डेडिकेटेड हो, जो उनको पता हो उनका करना क्या है। लगा दिए वो, मतलब यार क्या कहूं मैं आपको। और एनी अदर थिंग, एनी अदर क्वेश्चन? सर लिक मतलब चाटना होता है ना? चाटना होता है बेटा, स्पेलिंग चेक कर ले, LICK। यस सर। एक सिस्टम में आ जाओगे ना तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, स्पेलिंग में भी नहीं रहेगी, प्रोनाउंसिएशन में भी नहीं रहेगी। रटने की चीजें नहीं है, प्रैक्टिस में लाने की चीजें हैं बस। और रेमेडीज मतलब उपाय। हाँ बिल्कुल, उपाय हो गया ना। अब उस सेंटेंस के आपको रेफरेंस, रेमेडीज, रेमेडीज, REMEDIES, रेमेडीज। सर वो स्पेलिंग क्या थी? LICK, लिक, इसका मतलब चाटना। सर चाटना। हाँ, जैसे आइसक्रीम को चाटते हो तुम, ऐसे जीभ निकाल निकाल के ऐसे। सर ऐसा तो मत बोलो सर। क्यों नहीं चाटते हो क्या तुम?
आइसक्रीम को क्या खा जाते हो पूरी की पूरी, वैसे नहीं करते हो जीभ से, और नहीं करते हो तो फिर तुमको आइसक्रीम खानी नहीं आती। सर ऐसे नहीं चाटते सर, ऐसे एकदम पूरी ऐसे एकदम ऐसे करके चाटते हैं। अरे यार ऐसे कोई चाट सी जाती है जीभ से। अब तो तुम शाम के टाइम है ना, जवाहर सिकल मैं तुमको खिलाऊंगा कुल्फी, फिर बताऊंगा तुम्हें कैसे चाट के खाई जाती है कुल्फी। बताओ यार, तुम तो यार कुछ नहीं यार, तुमको तो आइसक्रीम चाटना भी नहीं आया यार, है? सर हाँ, सर मीनिंग बताओ इसका। किसका? RATOON। ये कहां से आ गया यार? है सर रोटन? रोटन। RATTON होगा वो तो। नहीं, RATOON। रैटून। ये क्या है? कौन, कहां से कहां है ये? सर कार्टून होता है ना, वैसे ये भी कुछ होगा। CARTOON होगा वो। अच्छा नहीं कैमरा सर। चालू कर पहले तो, इधर देख, तू मेरी तरफ, ये परेशान कर रहा है जबरदस्ती, इधर देख कैमरा चालू करके। अभी मैंने बोला उसमें आया है क्या? नो सर, मैं तो इंडिविजुअल अलग से पूछता हूँ। वैसे ही अपने तेरे मन में आ गया, पूछ लिया कि तूने देखा पढ़ा कुछ किया या वो कहीं तो ऐसी आ है, गई? ये कहीं पे है, कहीं पे देखा मैंने। कहाँ पे देखा था तूने? बुक में देखा था। बुक फोटो भेज उसकी। ओके सर। हाँ भाई, और कोई बात सोइल क्या होता है? है? सोइल। सॉइल का मतलब बेटा मिट्टी, मृदा। सॉइल, सॉइल, सॉइल आगे होगी ना स्पेलिंग, सॉइल, सॉइल SOIL। बेटा ये तरीका होता है यार, ऐसे नहीं होता वो यार। सच बता रहा हूँ मैं तुमको, छोटी क्लासेस से अगर ऐसी इन चीजों पे फोकस किया जाता ना तुम्हारे लिए, आप कहीं का कहीं हो जाते हैं यार। आप क्या बात कर रहे हो आप यार, इंग्लिश में सर नहीं रहती। हाँ बोलो। सर तद्भव शब्द और तद और तद्भव शब्द और तत्सम शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यार ध्यान नहीं है बेटा मेरे को, देख के बताएंगे यार अभी। सर हाँ सर जैसे इंग्लिश को हिंदी में अंग्रेजी बोलते हैं, वैसे ही हिंदी में इंग्लिश को क्या बोलते हैं? हिंदी में इंग्लिश को आंग्ल, अंग्रेजी आंग्ल भाषा। हिंदी को इंग्लिश में। हिंदी को इंग्लिश में हिंदी बोलेंगे, ये अंग्रेजी थोड़ी है जो बदल जाएगी जगह जगह, हिंदी है। ये बात सही है सर। हाँ, अंग्रेजी नहीं है जो बार बार अपना कहीं कुछ और कहीं कुछ और कहीं कुछ हो जाएगी, हिंदी है ये। हिंदी का मुकाबला कहाँ तू अंग्रेजी से कर रहा है? नहीं सर। हिंदी तो, अंग्रेजी तो कुछ भी नहीं है हिंदी के सामने। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं मैं, अब मैं लगातार पढ़ूंगा इसको फ्लो के साथ। Instead of wasting valuable resources on the provision of more medical facilities, it might be better to use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and minds. For example, learning the value of good nutrition for health and teaching this to the children. And we should use our indigenous simple home remedies to solve simple health problems instead of relying, 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 भरोसा करना, instead of relying simply on modern drugs, which are often very expensive and harmful also. And remember, most drugs have side effects. That is why I said that these are harmful, or not only expensive but also harmful, because most drugs, एलोपैथी ड्रग्स, अंग्रेजी दवाइयां जिसको हम बोलते हैं, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स which can be more dangerous than the disease itself. So in nature, animals are not influenced by media campaigns and they trust their own instincts. Nature has given each animal the power to monitor its own body and maintain normal health. As an example, salt is essential element required by all animals. Wild animals in the forest like rhinoceros, elephants, deer, etc. try to find a place where salt is present in the soil.
They regularly lick the soil to get the exact amount of salt their body need. They eat only the required amount of food and never suffer from obesity as we humans often do. देखा कभी किसी कुत्ते को मोटा हो गया, गाय को? नॉर्मली रहते हैं ना, कभी नहीं देखा? और कुछ होते भी हैं, खाएंगे डकारेंगे पड़े रहेंगे, खाएंगे डकारेंगे पड़े रहेंगे, तो वो तो होंगे ही होंगे। पढ़ा होगा 10th क्लास में आपने एक लेसन, कौन सा था? सर्जरी वाला, ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। यस सर। अब मैडम उसको ले, आइसक्रीम भी ले, चौक, अरे वो कुत्ता है यार वो, और चलने नहीं दे, क्या हो गया बिल्कुल ऐसा। आपने पढ़ा होगा ना उस स्टोरी के अंदर। यस सर, विस्की भी पिलाती थी सर। अरे बिस्की, अंडे, फन्ना, सर सब कुछ। क्लास 10th का ना। बाद में हाथ लगे, चला भी नहीं जाए उससे, अरे क्या कर दिया इसका लाड़ प्यार में। और उसने डॉक्टर के पास, डॉक्टर को पता था क्या करना है इसका, रखा अगर भूखा सर ओवर प्यासा पैम्परिंग। है, पानी पी और मस्त रहे, दौड़ हो गया 15 दिन में ठीक। सर ओवर पैम्परिंग। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट। सो you know, they regularly lick the soil to get the exact amount of salt their bodies need. They eat only the required amount. हम इंसानों की तरह नहीं, अपने हिस्से का तो खाएंगे, दूसरे का हिस्से का भी नहीं छोड़े। हाँ? They eat only the required amount of food and never suffer from obesity as we humans often do. They monitor their body needs by instinct. अपना बॉडी बता देती है कब किस चीज की जरूरत है। हाँ? सर्दी लगती है ना तो भैया अपने आप गर्म कपड़े पहन लेते हो, कोई बता के जाता पड़ोस से? ठंड हो गई है, स्वेटर पहन ले, बताता है कोई? खुद पहन लेते हो अपने आप। ये होता है इंस्टिंक्ट। बॉडी अपने आप बता देती है हमारे को किस चीज की जरूरत है। पानी की जरूरत है, बॉडी अपने आप बोल देगी पानी पी के प्यास लग रही है। स्कूल में ज्यादा लगती है, टॉयलेट आ रहा है, वॉशरूम जाना है, खट से पता चल जाता। तो बता के थोड़ी जाता है 6 बज गए, टॉयलेट करके आ। है ना ना। स्कूलों में ये चीजें ज्यादा होती हैं, घर पे आने के बाद नहीं होती है। स्कूल में आपको वॉशरूम भी बहुत ज्यादा, पानी भी, प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है भाई, पता नहीं, मैंने आज तक समझ नहीं आई मेरे को ये बात यार। हाँ? They monitor their body needs by instinct and eat no more than is required. That's it. Thank you very much.